آج 16 دسمبر ہے. آج سے 50 سال پہلے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سے الگ ہونے کے بعد بنگلہ دیش پچھتاتا, ہم ترقی کرتے اور اسے احساس ہوتا, کیونکہ وسائل ہمارے پاس تھے, بہتر سول بیوروکریسی اور انفراسٹرکچر ہمارے پاس تھا, منظم فوج ہمارے پاس تھی, ادارے ہمارے پاس تھے. مگر پھر ہوا کیا؟ آج 50 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اور بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے؟ وہ ملک جسے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے باسکٹ کیس قرار دیا تھا, معاشی مسائل کے بوجھ تلے دبا ہوا ملک جس کے معاشی مستقبل پر سوالات اٹھائے گئے تھے, مگر آج بنگلہ دیش کی معاشی کارکردگی ہم سے بہتر ہے. ان 50 سالوں میں بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی میں 25 گنا اضافہ ہوا. یہ پاکستان اور بھارت سے بھی زیادہ ہو گئی. غذائی پیداوار میں 4 گنا اور برآمدات میں 100 گنا اضافہ ہوا, جبکہ آبادی میں اضافے کو قابو میں رکھا گیا اور غربت کی شرح 20% ہو گئی. آج 50 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں اور بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہے؟ تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. 1971 میں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی صرف 8 ارب ڈالرز تھی, جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی 11 ارب ڈالرز تھی. اور پھر 17 سال کے بعد بھی 1988 میں پاکستان کی جی ڈی پی 40 ارب ڈالرز ہو گئی, جبکہ بنگلہ دیش کی معیشت محض 26 ارب ڈالرز تھی. اور اس وقت بھی پاکستان کی فی کس آمدنی 380 ڈالر تھی, جبکہ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی ہم سے بہت کم 270 ڈالرز تھی. مگر پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے حالات و واقعات بدلے اور 30 سالوں میں بنگلہ دیش ہمیں پیچھے چھوڑتا چلا گیا. 10 سال کے بعد 1998 میں بنگلہ دیش کی معیشت 50 ارب ڈالرز پر پہنچ گئی, جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی 60 ارب ڈالرز ہو گیا. پھر 2003 میں پاکستانی معیشت کا حجم 83 ارب ڈالرز اور بنگلہ دیش کا معیشت کا حجم 60 ارب ڈالرز ہی رہا. 2 سال بعد یعنی 2005 میں پاکستانی معیشت 100 ارب ڈالرز تک پہنچی اور بنگلہ دیشی معیشت 70 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی. اور پھر 2 سال بعد یعنی 2007 میں پاکستان کا معاشی حجم 150 ارب ڈالرز ہو گیا, بنگلہ دیش کا معاشی سائز 80 ارب ڈالرز ہو گیا. 2010 میں پاکستانی معیشت 177 ارب ڈالرز پر پہنچ گئی, بنگلہ دیشی معیشت 111 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی. اور پھر 2012 میں پاکستانی معیشت 225 ارب ڈالرز پر پہنچی اور بنگلہ دیشی معیشت 133 ارب ڈالرز پر پہنچی. 2014 میں پاکستان کی معیشت 250 ارب ڈالر ہو گئی, بنگلہ دیش کی معیشت 250 ارب ڈالرز ہو گئی. اور 2018 میں ہم 314 ارب ڈالرز پر پہنچے, 300 ارب ڈالرز کراس ہو گیا, جبکہ بنگلہ دیش کی معیشت بھی پیچھے قریب آ گئی اور وہ 275 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی. اور پھر 2019 اور 2020 کے 2 مالی سالوں میں ہم نے ترقی نہیں کی, مگر بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کا سلسلہ جاری رہا اور بنگلہ دیشی معیشت 300 ارب ڈالرز سے اوپر چلی گئی. ہم روپیہ گرنے سے ڈالرز میں اور پیچھے چلے گئے اور پاکستان کی معیشت 315 ارب ڈالر سے گر کر 270 ارب ڈالرز رہ گئی, جو گزشتہ مالی سال میں روپے کی قدر میں بہتری اور جی ڈی پی گروتھ کی وجہ سے 296 ارب ڈالرز پر پہنچی. مگر روپیہ پھر گر گیا ہے, بنگلہ دیشی ٹکا پھر اسٹرانگ ہے, مگر بنگلہ دیش مزید آگے نکلتا جا رہا ہے. کورونا کے دوران بھی بنگلہ دیش کی معیشت منفی نہیں ہوئی. یہی نہیں, بنگلہ دیش جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور جس کی معیشت بہت پیچھے تھی, ہم اس سے آبادی میں آگے نکل گئے اور معیشت میں بنگلہ دیش آگے نکل گیا. جو آبادی 50 سال پہلے تقریباً برابر تھی, آج اس میں 6 کروڑ عوام کا فرق ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ ہے, ہم سے 6 کروڑ کم. اور آج بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی جو 50 سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھی, وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے 70% زیادہ امیر تھا اور آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% زیادہ امیر ہے. بنگلہ دیش کے کیبنٹ سیکرٹری کے مطابق گزشتہ مالی سال میں بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی میں 9% کا اضافہ ہوا اور وہ 2227 ڈالرز پر پہنچ چکی ہے, جبکہ پاکستان کی فی کس آمدنی میں ڈالرز میں گزشتہ 3 برسوں میں کمی آئی اور گزشتہ مالی سال میں اضافے کے باوجود 1543 ڈالرز پر پہنچی. کیونکہ پاکستانی روپیہ مسلسل گر رہا ہے, بنگلہ دیشی ٹکا نسبتاً اتنا نہیں گرا, مگر گزشتہ 3 برسوں میں وہ مستحکم رہا اور ہم نے ترقی بھی بنگلہ دیش سے بہت کم کی. بنگلہ دیش نے پاکستان اور بھارت دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا. 1 جون 2021 کو شائع ہونے والی بلومبرگ کے آرٹیکل کے مطابق بھارت جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں صرف اس کی معیشت اہم ہے, اب اسے بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ بنگلہ دیش سے فی کس آمدنی کے مقابلے میں غریب ہے. کیونکہ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی 2227 ڈالرز کے مقابلے میں بھارت کی فی کس آمدنی اس سال 1947 ڈالرز رہ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا میں بھی بنگلہ دیش کی معیشت منفی نہیں ہوئی. اچھی پالیسیز کے ساتھ بنگلہ دیش مثبت جی ڈی پی کے ساتھ گرو کرتا رہا. پاکستان کا جی ڈی پی -0.5 تک گیا, بھارت کی معیشت -7.3 تک گئی یعنی سکڑ گئی. اس سال آئی ایم ایف بنگلہ دیش کی معیشت کے لیے اور بہتر توقع کر رہا ہے. 2022 میں 7.5% کی ترقی دیکھ رہا ہے, جبکہ پاکستانی حکومت خود اگلے سال کے لیے 4.8% کا ٹارگٹ دے رہی ہے. اب 5% کی ترقی کے آثار آتے ہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور شرح سود پاکستان کا پہلے ہی بڑھ گیا ہے. مہنگائی 11.5% اور شرح سود 10.25% پر چلی گئی ہے. بنگلہ دیش میں مہنگائی بھی ہم سے آدھی ہے, شرح سود بھی ہم سے آدھی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کنٹرول میں ہے اور ترقی کا سفر بھی جاری ہے. یعنی اسی طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشت میں فرق بڑھتا چلا گیا ہے اور بڑھ رہا ہے. بنگلہ دیش اور آگے نکل رہا ہے. بلومبرگ کے آرٹیکل کے مطابق بنگلہ دیش کی معاشی ترقی 3 ستونوں پر کھڑی ہے اور وہ ستون ہے برآمدات, معاشی ترقی اور مالی معاملات میں دانش مندی. 2011 سے 2019 کے درمیان بنگلہ دیش کی برآمدات میں ہر سال 8.6% کا اضافہ ہوا,
जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 4% इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह खवातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़ता हुआ किरदार है। जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा, जो जीडीपी का 30 से 40% के दरमियान है। बांग्लादेश का भी टैक्स टू जीडीपी रेशो इतना अच्छा नहीं है, मगर खर्चे भी कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से खसारे कम हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज 80% से ज्यादा है। इसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्ज लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे हैं। ये अहम बात है कि बांग्लादेश ने जनूबी कोरिया और वियतनाम की तरह तेजी से तरक्की नहीं की है, और ना ही उसकी बरामदात में उन ममालिक की तरह उतनी ही तेजी से इजाफा हुआ है। जहां जनूबी कोरिया और वियतनाम ने अपनी बरामदात को फैलाकर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ा दिया है, डाइवर्सिफाई किया है, तो वहीं बांग्लादेश का इन्हिसार महज टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन पर रहा है। यानी बांग्लादेश के मुकाबले में इस खित्ते की दीगर मईशतों ने बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जिनका मवाजना बांग्लादेश से किया जा सकता है, मगर बांग्लादेश ने हमसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरामदात का मवाजना करते हैं। ये बहुत अहम मवाजना है, क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में बांग्लादेश की बरामदात $6 अरब थी, जबकि पाकिस्तानी बरामदात $8 अरब 40 करोड़ थी। मगर 1999 से 2005 तक पाकिस्तानी बरामदात $8 अरब से $15 अरब तक पहुंची। बांग्लादेश की बरामदात $9.5 अरब तक पहुंची। 2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर $22 अरब हो गई। बांग्लादेश की बरामदात $15.5 अरब तक पहुंची, और फिर बांग्लादेश हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही उस जमाने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढी, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, ज्वाइंट वेंचर्स किए ताकि उन्हें आइंदा फायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, तो बांग्लादेश में बरामदात पर तेजी से काम हो रहा था। और 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदात बमुश्किल $3 अरब बढ़कर $25 अरब पर पहुंची थी, जबकि बांग्लादेश $25 अरब के साथ पाकिस्तान के बराबर आकर खड़ा हो गया था। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदात $25 अरब से आगे नहीं बढ़ सकती। 2018 में पाकिस्तान की बरामदात उल्टा कम होकर $23.5 अरब तक पहुंच गई, और बांग्लादेश $40 अरब से ऊपर निकल गया, हमसे बहुत आगे चला गया। हम मुश्किल से $25 अरब से ऊपर नहीं जा पाए। इस साल अगर $31 अरब के पास बरामदात गई, तो दरामदात $70 अरब से ऊपर होने का खदशा है। 3 सालों में तकरीबन 45% करेंसी गिराकर भी नवंबर में $8 अरब की दरामदात और $2.9 अरब की बरामदात हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का खसारा अभी भी बरकरार है। बांग्लादेश के मसाइल नहीं है। 3 साल में बरामदात में महज $600 मिलियन का इजाफा हुआ, और $24.7 अरब से $25.3 अरब पर पहुंची। अब अगले साल के लिए $31.2 अरब का टारगेट है। और इस वक्त करंट अकाउंट खसारे को सिर्फ तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस से हमें मदद मिली हुई है, जिनमें 3 सालों में $19.9 अरब से $29.3 अरब तक तकरीबन $9.5 अरब या 50% का इजाफा हुआ है पाकिस्तान का। मगर यहाँ भी बांग्लादेश की कारकर्दगी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में 3 सालों में 70% यानी $10 अरब का इजाफा हुआ है, और वो $14.9 अरब से $24.7 अरब पर पहुंच चुकी हैं। यानी गुज़िश्ता 3 सालों में बांग्लादेश में तरसीलात ज़र में परसेंटेज में ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत में बेहतरी के लिए बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की बरामदात जीडीपी का 10% से भी कम है, जबकि बांग्लादेश और भारत की बरामदात जीडीपी का 15% से ज़्यादा है। वियतनाम की बरामदात उनके जीडीपी का 100% से भी ऊपर है। बांग्लादेश की बरामदात में 84% हिस्सा गारमेंट्स का है। बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। बहरहाल अब 50 साल बाद बांग्लादेश मुआशी तरक्की में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत को भी पीछे छोड़ रहा है। 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बांग्लादेश की मईशत पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की मईशत भारत से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2010 से 80 लाख अफराद गुर्बत से निकल आए हैं, और सिर्फ 10 साल में फ़ीकस आमदनी में 3 गुना इजाफा हो गया है। बांग्लादेशी मईशत में तेज़ी से बेहतरी की 4 वजूहात हैं। पहली वजह कि बांग्लादेश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट्स इंडस्ट्री है। सिर्फ चीन बांग्लादेश से आगे है, और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हर साल तकरीबन 16% से बढ़ रही हैं। दूसरी वजह बड़ी तादाद में नौजवान वर्क फोर्स है। बांग्लादेश दुनिया की 8वीं बड़ी आबादी है, मगर उसकी आधी आबादी 25 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान टेक्नोलॉजी को आसानी से कबूल कर लेते हैं और तेजी से सीखते हैं। तीसरी वजह डिजिटल पावर है। बांग्लादेश में 60 लाख IT फ्रीलांसर्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद है। टेक्नोलॉजी बांग्लादेशियों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर रहे हैं। चौथी वजह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह बताई कि बांग्लादेश नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तब्दीलियां लाई जा रही हैं। बांग्लादेश ढाका में अपनी टेक्नोलॉजी हब कायम कर रहा है। नए कारोबारी अफराद को ज़बरदस्त किस्म के टैक्स रियायतें दी जा रही हैं, और सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम किए गए हैं। बांग्लादेश का अज़म है कि वो आइंदा 20 सालों में तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। बांग्लादेश की तरक्की में बरामदात, खासतौर पर गारमेंट्स की बरामदात का बड़ा अहम किरदार है। उस इंडस्ट्री में ख़वातीन लेबर का अहम किरदार है।
40 लाख बांग्लादेशी इस इंडस्ट्री से बराह रास्त जुड़े हुए हैं और उसमें 80% खवातीन हैं। बांग्लादेशी खवातीन का मईशत में किरदार पाकिस्तान और भारत से बहुत ज़्यादा है। अहम बात यह है कि बांग्लादेश में हुकूमत पर अपोजिशन को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगता है, जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगता है। हुकूमत और अपोजिशन में शदीद इख्तलाफात हैं और ये सब बांग्लादेश की तरक्की को मुतासिर करते हैं। मगर मुआशी पॉलिसियों का तसलसल है और सरमायाकारों को यह एतमाद रहा है कि हुकूमत बदलने से पॉलिसी उस तरह नहीं बदल जाएगी कि उनकी सरमायाकारी ही खतरे में पड़ जाए। यानी सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मुआशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम पर इत्तफाक है। और साबिक स्टेट बैंक गवर्नर डॉक्टर इरशद हुसैन ने इस हवाले से अपने आर्टिकल में लिखा है कि सख्त सियासी दुश्मनी होने के बावजूद वहाँ मुआशी पॉलिसियों, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स का तसलसल बरकरार है। सियासी जमातें मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, माली दूरंदेशी, तिजारत में तोसी, प्राइवेट सेक्टर के लिए मराहत और मुआशी तरक्की के अपनी बुनियादों से पीछे नहीं हटी। पॉलिसी में तब्दीली ना करने की वजह से देखा गया है कि हुकूमत की तब्दीली के बावजूद ऐसी कोई अचानक तब्दीली नहीं आई जो सरमायाकारों और मार्केट के जज्बात पर मनफी असर डाले और यूँ सरमायाकारों को बिला तात्तुल अपना काम जारी रखने का मौका मिला, जो वक्त के साथ मुआशी तरक्की का बाइस बना। और यूँ 50 साल में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। मगर हमारा मामला ये है कि हमने हकीकत का सामना करने के बजाय हकीकत से नज़रें चुराई, हकीकत को छुपाया। जब ढाका हाथ से निकला और शिकस्त हो गई तो उसके अगले दिन अखबारों में ये हेडलाइंस लगवाई गई कि उस वक्त के सदर और आमिर जनरल याया खान का कहना है कि जंग जीत तक जारी रहेगी, जबकि कम नुमाया खबर में लिखा गया था कि भारतीय फौजी दस्ते ढाका में दाखिल हो गए और पाकिस्तानी फौजियों के साथ मुज़ाकरात के बाद अब जंग रुक गई है। यानी सेंसरशिप ने मगरबी पाकिस्तान की आवाम को सूरत हाल के बारे में अंधेरे में रखा, हक़ाइक़ आवाम के सामने नहीं आए। ये होता है सेंसरशिप का नतीजा। सच को रोक कर आप सच्चाई को रोक नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते और मुस्तकबिल में भी अपनी तस्हीह कर नहीं सकते। याया खान का बयान छप रहा था कि आखिर तक लड़ाई जारी रखेंगे, मगर मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो चुका था, हथियार डाले जा चुके थे। ना उस वक्त सच छापा गया, न बाद में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने लाकर अवाम को सच बताया गया। मगर क्या सच छुपाकर, अपनी गलतियाँ छुपाकर हमने गलतियाँ दोहराना छोड़ दी या गलतियों की तस्हीह की? ज़रा सोचिए।